آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین اور ہمارے ساتھ ہیں علامہ حسن رضا پاکر. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گی. عظما نے کراچی سے لکھا ہے ہمیں کہ کیا بچوں کی ہر ضد کو پورا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل کے بچوں کو نہ نہیں کرنی چاہیے. آپ ان کو نو کہتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میں ذرا تھوڑی پرانی ماں ہوں نا، اس لیے مجھے یہ باتیں فنی لگتی ہیں. دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ بچہ جس بات پہ ضد کرتا ہے اس کو ڈانٹ پٹ جاتی ہے. یا تیسرا عمل یہ ہے کہ بچہ ضد کرتا ہے، کرتا جاتا ہے، جب ان بچے ماں باپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے تو وہ پھر اس کی ضد مان جاتے ہیں. صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی ہر ضد کو پورا کرتے جائیں گے تو وہ اپنی اس کو عادت بنائے گا کہ میں جو بھی کہوں گا وہ سب کچھ پورا کیا جائے گا. اگر آپ اس کی کچھ جائز چیزوں کو آپ پورا کریں، جو ناجائز ہیں اس پہ اس کو گائیڈ کریں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس طرح سے آپ بہت سارے وبال سے محفوظ رہیں گے. تو اگر آپ نے اس کو اس بات پہ چلا لیا ابتدا میں، اس کی ہر ضد کو پورا کرتے رہے، تو وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلیں گی. کیونکہ وہ جس پروسیس میں آپ نے اس کو بچپن میں گزارا تھا کہ بیٹا ہم نے تمہارے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی کرنا ہے، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ماں باپ نہیں بلکہ یہ میرے غلام ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہر ضد بچے کی پوری نہیں کرنی چاہیے، چونکہ جس پروسیس میں وہ ہے اس کو نو کہنا بھی آنا چاہیے اور یس کرنا بھی آنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا علامہ صاحب آپ سے گائیڈنس لینا چاہوں گی. اب مولا علی نے تو حکم دیا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بہت نازوں سے پالنا ہے. ادھر ضد بھی آتی ہے. اب ضد کے معاملے میں کیا کرے؟ کیونکہ کبھی کبھی علامہ صاحب اگر بچہ ضد کر رہا ہے کہ اس نے بجلی کی تار کے اندر انگلی دینی ہی دینی ہے، اور آپ کو پتا ہے جب بچے مشن پہ نکلتے ہیں تو ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے مطلب یہ کچن کے فریج کے اوپر کس طرح بیٹھ گیا. اب بچہ ضد کر رہا ہے میں نے اوپر بیٹھے رہنا ہے، الیکٹرانک چیز کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے، یا بجلی میں ہاتھ ڈال دیا یا جل گیا. اب ان ضدوں کا ہم کیا کریں؟ اب دیکھیے بچہ جو بادشاہ ہے، اب اس بادشاہت کو بھی سمجھے. بادشاہ کے ساتھ وزیر بھی ہوتا ہے جو اس کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اسے گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے. تو والدین جو ہے اس کے یعنی وزیر ہیں، ساتھ اسے رہنمائی کریں گے، اسے گائیڈ لائن دیں گے. اور یہاں پر یہ ہے کہ بچے کی ہر ضد پوری کریں نہیں، ہر ضد پوری نہیں کرنا. ہاں جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا کریں. ہاں جی. اگر آپ نے بچے سے کہا بیٹا یہ لے کر دوں گی اور بعد میں آپ نے کہا بچہ ہے نہیں لے کے دوں گی، نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچے آپ کو اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خدا ہمارا رازق ہے، وہی روزی دینے والا ہے، تو بچوں کی نظر میں آپ ہی اس کے لیے سب کچھ ہے. اگر وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کریں. اچھا، نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے اور آپ بھی ضرور ڈاکٹر صاحب اس میں اپنی ایڈیشن کیجیے گا. یہ شازیہ نے لاہور سے پوچھا ہے، 1 سے زیادہ بچے ہوں تو ان میں انصاف کرنا کتنا ضروری ہے؟ میری سچویشن دیکھ لیں، میں 3 ڈیفرنٹ مرحلوں میں پھنسی ہوئی ہوں بچوں کے ساتھ، اور میں اکثر کنفیوز ہو جاتی ہوں. کبھی حمزہ کسی مسئلے سے گزرا ہوتا ہے، مجھے اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے، باقی 2 اپ سیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے ہیں. نور کو زیادہ توجہ دو تو لڑکے دونوں گھوم کے کہتے ہیں آپ کو تو بیٹی چاہیے تھی، آپ اس لیے صرف اس کے ساتھ لاڈ کرتی ہیں. قسم سے ایز اے پیرنٹ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. ایسا ہی جی. اب دیکھیے جہاں تک پیار و محبت کا تعلق ہے، وہاں پر تمام بچوں کے درمیان ہمیں عدل اور مساوات رکھنی چاہیے کہ کسی بچے کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ شاید والدین کی نگاہ میں فلاں بہن یا بھائی کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ اس طرح بچوں کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا اور آپس میں اولاد میں جو ہے وہ رقابت پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کوئی تحفے تحائف لے کے گھر آتے ہیں تو اس میں بیٹی کو بیٹوں پر مقدم رکھنا چاہیے. اسی طرح باقی جب ہم بازار میں جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں، اگر ہم نے بیٹوں کو لے کر دی ہیں لباس ڈریسز تو وہیں پہ ہمیں بیٹیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ان چیزوں میں مساوات ہونا چاہیے. لیکن گھر میں جب آ کے ہم کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فوقیت ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ یا میں صرف ایک حدیث رسول جو میں نے اس سے پہلے بھی کوٹ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا اولادکم، کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کے ساتھ چلو. تو عدل اور انصاف جیسا کہ علامہ صاحب نے بھی کہا کہ یہی ہے کہ ہر ایک آپ اس گھر کو پہ اپنے عدل و انصاف کریں گے، آپ کے بچے وہی عدل و انصاف سیکھیں گے، اور کل کو باہر جا کے سوسائٹی میں آپ کو شرمندگی کا
मतलब नहीं फेस करनी पड़ेगी. सिंपल सी बात है. जो चीज़ आप घर में अपने बच्चों को दिखाएंगे वही चीज़ वो बाहर जाके करेंगे. अक्सर मैंने देखा है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा घरों में मार पिटती है या बाप बहुत ज़्यादा हाथ उठाता है लड़के पे, कल को वो भी हाथ चलाता है अपनी बीवी पे. ये एक साइकिल है. जब तक हम इस साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे. एक और बहुत ट्रेजिक बात डॉक्टर साहब आपसे शुरू करके अलामा साहब आपके पास फिर इसी सवाल को, क्योंकि ये आप दोनों कवर करेंगे तो बेहतर होगा. आज के दौर में बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन, ये बुशरा ने फैसलाबाद से पूछा है, सेल्फ प्रोटेक्शन यानी कि अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है सिखाना. सोसाइटी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ पे बच्चे मोलेस्ट होते हैं, रेप हो जाते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियों दोनों का, बच्चे गायब हो जाते हैं. एक वक्त था जब बच्चे बाहर निकल जाते थे, सुबह निकलते थे, शाम को घर वापस आते थे, आपको उनके खाने पीने की भी टेंशन नहीं होती थी. आपको पता था हम साए खिला देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. अब तो आपका बच्चा दरवाजे तक जाता है और आपकी जान निकल जाती है कि हम क्या करें. बच्चों को सेल्फ प्रोटेक्शन के बारे में सिखाना कितना ज़रूरी है और किस तरह सिखाएं और किस एज पे सिखाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. देखिए, ये चीज़ें जिस तरह से इस्लाम ने हमें तालीम दी है, देखिए अगर आप जब तरबियत कर रहे हैं, उस तरबियत के अंदाज में बच्चों को आप ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं कि आपने अपनी ज़ात, आप कैसा मुआशरा है, हम जिस जगह पे रहते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपने लोगों के साथ बिहेव सिखाएं. जब आप बिहेव सिखाएंगे तो उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता चला जाएगा. बिल्कुल जी. अब इस हवाले से सबसे पहले हमें इस्लाम कहता है कि जब बच्चे 7 साल की उम्र के पहुंचे तो 2 भाइयों के बिस्तर भी अलग कर दें. यानी वहाँ, और फिर यहाँ पर हमें इस्लाम ये कहता है कि वहाँ पर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी और बुरे का फ़र्क बताएं. यानी गुड टच क्या है, बैड टच क्या है. और यहाँ तक कि अगर कोई बच्ची है तो उसे बताया जाए कि 7 साल के बाद आपने किसी अजनबी की आगोश में नहीं बैठना, कोई आपका मुंह चूम रहा है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आप लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं प्लीज बात, क्योंकि जो अब एक मेजर चीज सामने आ रही है वो ये है कि बच्चियों से ज्यादा लड़कों के साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि लोग सोचते नहीं है ना, वो सिर्फ बच्ची के. प्लीज भैया ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज गाइड. ऐसा ही है. और वो जो मैं अर्ज करना चाह रहा था कि 7 साल उनके बिस्तर अलग कर दिए, फिर जब 7 साल का बच्चा हो गया तो उसे बताया जाए कि किसी दूसरे की गोद में आपने नहीं बैठना. बिल्कुल. और इसी तरह बच्चे को बताया जाए कि अगर आपको कोई बोसा दे रहा है तो उसकी तरफ भी उसे मुतवज्जह किया जाना चाहिए. मसलन पेशानी पे वो बोसा ले रहा है या कैसे, इस हवाले से. और फिर अगर कोई बच्चे के जिस्म को छूना चाहता है तो बच्चे को, बेटा हो या बेटी, उसे बताना चाहिए कि आपने किसको कैसे रोकना है. और अगर कोई इस तरह आपको गुड टच या बैड टच, उसके हवाले से उसे आगाही होनी चाहिए. और अगर कोई ऐसा अजनबी उनके साथ बिहेवियर करता है तो माँ बाप को इतना उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए कि वो घर आके बताए. और इस हवाले से जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की एक तरबियत का उसूल है, वो तो एक पाकीज़ा घराना था कि आप अगर बच्चों को मस्जिद में भी भेजती थी तो उन्हें दरवाजे पर रुक के पूछती थी, बेटा कहाँ गए थे और वहां पर क्या सुन के आए हो. यानी अब अगर बेटा बाहर गया घर से तो माँ उसे घर के दरवाजे पर ही रोक के पूछे, आप किस सोसाइटी में गए, किन लोगों के पास गए, वहां क्या गुफ्तगू हुई, वहां क्या आपके साथ बिहेवियर हुआ. अगर हम ये तर्ज अमल अपना लें और अपने बच्चों को अपनाइयत दें और उन्हें बताएं कि अच्छी गुड टच क्या है और बैड टच क्या है और कौन सी लिमिटेशंस हैं, तो उस तरह बच्चा अपने खुद सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकता है. बहुत आपने अच्छी बात की रामा साहब और डॉक्टर साहब आपने भी. देखिए व्यूअर्स, ये अनकंफर्टेबल टॉपिक्स होते हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने इनको टच किया. होता ये है कि हम ये बातें करते नहीं हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है. देखिए, माँ बाप से ज़्यादा करीबी ताल्लुक बच्चे का किसी से हो ही नहीं सकता. ऑब्वियसली फिर शादी होती है और मामला, लेकिन जितनी देर तक हमारी केयर के अंदर हैं बच्चे, जब तक हम ओपन ताल्लुक, ओपन से मुराद ये नहीं कि गंदी बातें और फजूल गुफ्तगू के अंदर आप पड़े, लेकिन ये क्योंकि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड गुफ्तगू है, तो प्लीज़ व्यूअर्स, बाप और माँ एटलीस्ट वो दरवाज़ा खुला रखें जहाँ पे बच्चे आके उनसे बात कर पाएँ. ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे स्कॉलर्स जो हैं हमारी आज की गुफ्तगू को समेटेंगे. तरबियत तो इतना बड़ा टॉपिक है, सारी ज़िंदगी भी बात करते रहे, अभी हमारी तरबियत ही नहीं मुकम्मल हुई तो हम किसी को क्या बताएंगे. लेकिन हम गुफ्तगू को कंक्लूड करेंगे और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही बेहतरीन सनाख्वा अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी. उनसे भी हम कलाम सुनेंगे.
व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारा शरह दीन का सेगमेंट अब अपने अख्ताम की तरफ पहुंच रहा है और औलाद की तरबियत, हम इस टॉपिक को क्लोज कैसे करेंगे? डॉक्टर साहब आपसे बात शुरू करेंगे, वी विल कंक्लूड विद यू अलामा साहब जी। औलाद की तरबियत कैसे करेंगे? औलाद की तरबियत सबसे पहले हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह से अर्ज़ की मालिक मुझे नेक औलाद अता कर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक साले मुहज़्ज़ब औलाद की दुआ करनी चाहिए और उसके बाद फिर सारी चीज़ें ख़ुद से औलाद की जिस तरह से हमने तरबियत करनी है। जी। अब देखिए, एक जब हम तरबियत औलाद करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें हम नेकी या अच्छाई के लिए मोटिवेट कैसे करें? रिवायत है कि अगर हम सदका देना चाहते हैं तो वो अपने औलाद को दें और उनके हाथ से मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। इस तरह बच्चे के दिल में ख़ुद ब खुद सखावत का जज्बा पैदा होगा और उसे पता होगा मैंने सिर्फ ख़ुद नहीं खाना, मैंने दूसरों को भी खिलाना है। अगर मसलन हम उन्हें अमीन बनाना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे को मसलन 1000 रुपया दे देता हूँ कि बेटा ये आपके पास बतौर अमानत है और मैं 1 महीने बाद आपसे लूँगा। अब देखिए, बसा औकात बच्चे के पास कुछ नहीं होगा, खाने को जी चाहेगा, लेकिन जब उसे पता होगा नहीं ये अमानत है, ये मेरी मिल्कियत नहीं है, वो प्रैक्टिकली सीख जाएगा कि मुझे अमानत में ख़यानत नहीं करना। और फिर जब हम औलाद की तरबियत कर रहे होते हैं उसमें एक अहम उनसर जो है वो प्यार और मोहब्बत का है कि जब हम औलाद की तरबियत कर रहे हैं तो हमारे जहन में हमने इन्हें सिखाना है, हमने इनकी जो सलाहियत है उन्हें कमाल तक पहुंचाना है। बस औकात जब वालिदैन डिक्टेटर बन जाते हैं, उनके साथ मार पीट करते हैं, जब देखा कि बच्चा नहीं सीख रहा उनके साथ सख्ती करते हैं, तो ये तरबियत का अंदाज नहीं है। रिवायात में इससे रोका गया है। अगर आप बच्चे को मार पीट करेंगे सिखाने के लिए, बच्चा बागी हो जाएगा, वो सीखेगा नहीं। जब तक आपके सामने है वो मुहज़्ज़ब बना हुआ है, जैसे ही वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाएगा उसके अंदर बगावत आएगी, उसी काम की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। और मैं कहूँगा फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, आपने कहा अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, कि अपनी औलाद को 3 चीज़ों की तरबियत ज़रूर दो। कहा पहला हुब्बे नबीयकुम, उन्हें अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बिल्कुल। फिर कहा वहुब्बी अहले बैतिही, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। फिर कहा वक़िराअतिल कुरान, और उन्हें कुरान की तिलावत और कुरान की किरात सिखाओ। अब देखिए, जब वो नबी से मोहब्बत हो जाएगी खुद ब खुद उसका किरदार संवरने लगेगा। जब अहले बैत से मोहब्बत हो जाएगी खुद ब खुद उसके अंदर सखावत, शुजाअत, इल्म से मोहब्बत, ये कमाल पैदा हो जाएगा। जब वो कुरान की तिलावत करेगा खुद ब खुद वो कुरान की तिलावत और तर्जुमा से सीख लेगा कि कुरान जो हमारे लिए अमली किताब है वो हमें कैसे अपने आप को दुनिया के लिए रोल मॉडल बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच अलामा साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह।